हाँ जी दीदी ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਨਫਿਨਾਈਟ ਲਾਈਨ ਚਾਰਜ ਵਾਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਥਿਨ ਸ਼ੀਟ ਹੈ ਚਾਰਜ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੈਂਥ ਲਈ ਸੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਲੈਂਥ, ਉਹ ਚਾਰਜ ਦੀ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨ ਕਿੱਧਰ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇੱਧਰ 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 ਇੱਧਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਈਪ ਲਿਆਓ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਈਪ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੋਲ ਕਰ ਦਿਓ, छोटे छोटे होल करोगे और जो पाइप के विचों वाटर किधर निकलूगा, पाइप के परपेंडिकुलर छोटी छोटियां बरीक ਜਿਹੜੇ ਹੋਲਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅਗਰ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਲਾਈਨ ਚਾਰਜ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨ ਇੱਧਰ 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 ਇੱਧਰ, ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਡਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਿਲੈਂਡਰੀਕਲ ਸ਼ੇਪ ਡਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸੈਕੰਡ ਕੇਸ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਸੈਕੰਡ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਇਨਫਿਨਾਈਟ ਲੈਂਥ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਸ਼ੀਟ ਹੈ ਜੋ ਚਾਰਜ ਦੀ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸ਼ੀਟ ਹੈਗੀ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਆ ਸ਼ੀਟ ਹੈ ਚਾਰਜ ਦੀ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੀ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈ ਰਜੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਕਿੱਧਰ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਤੋਂ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਆਊਟਵਰਡ ਹੋਣਾ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ, इस साइड तो इस डायरेक्शन जाएंगे, मतलब कि हम ਜਿਹੜੀਆਂ इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ने वो इस सरफेस ਦੇ ਇੱਧਰ ਵੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੁਆਇੰਟ P। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਇਸ P ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਭੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ P ਦੇ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਪਈ ਸ਼ੀਟ, ਇਹ ਪਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਹੈਗਾ r ਡਿਸਟੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ r ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੱਕ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ P, ਇਹ ਹੈਗਾ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਇਹਦੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ P ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸ਼ੀਟ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ P ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ੀਟ ਤੋਂ P ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈਗਾ, r, ਠੀਕ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਕਰ ਲਓ, ਸੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ds, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਤਲਬ ब्लू वाला पॉजिटिव चार्ज है तो वही रेड वाला ही, बट ब्लू नाल मैं ये कह रहा कि जिहड़ा आपां इहदे विचों कट कीता कुछ पोर्शन, ठीक है। मैं की कीता, सॉरी आ शीट सीगी, शीट दे विच एक छोटा जिहा सर्कल कट कर लिया ds। वो जिहड़ा सर्कल कट कीता है ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਲ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ds ਵਾਲਾ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ds ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਕੱਟ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ds ਏਰੀਆ ਦਾ ਕੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਸਰਕਲ ਕੱਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਸਰਕਲ ਵਾਲਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਲੰਡਰ ਪਾਸ ਕਰ ਦੋ। ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਾਂ इस शीट ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸ਼ੀਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀ ਵਾਈਟ ਬੋਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਕੱਟ ਕੀਤਾ। ਸਿਲੰਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਰਕਲਸ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ, ਸਰਕਲਸ ਪੈਰਲਲ ਰੱਖਦੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਤਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ds ਏਰੀਆ ਕੱਟ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਪਾਸ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਿਲੰਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ P ਪੁਆਇੰਟ, पहला P पॉइंट कितने आया सी, कर्व सरफेस ते। हुण P पॉइंट उस सिलेंडर दे कितने आया हैगा, मैनूं दसो। जिहड़ा सिलेंडर कट कीता P पॉइंट उसदे क्रॉस सैक्शनल एरिए ते आ गया। हुण तुहानूं पता है इस पॉइंट ते फील्ड किधर होगी, बाहर नूं, ते इहदा जिहड़ा एरिया होएगा ds, आ एरिया कितना कट कीता तुसीं ds, जे इन्ना ds एरिया कट कीता तां इत्थे भी कितना होगा ds, इसकी डायरेक्शन भी किधर होगी ds दी, बाहर नूं। इसनूं मैं कह दिंदा फर्स्ट एरिया कह देना। देखो
पॉजिटिव चार्ज करके इस पॉइंट पे भी फील्ड किधर होगी, ਤੁਹਾਨੂੰ पता पॉजिटिव चार्ज इधर भी इधर भी इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इधर भी देख लो, इधर भी की होगा ds इधर, इसनू मैं कह देना सेकंड एरिया, इसनू मैं कह देता सेकंड एरिया, इसनू फर्स्ट एरिया। मतलब ਇੱਥੇ E ਤੇ ds ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ 0 ਡਿਗਰੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ E ਤੇ ds ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਰਿਹਾ 0 ਡਿਗਰੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਿਲੈਂਡਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟਸ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੋ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਸਰਕਲ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ। ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਧਰ ਹੋਊਗੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ, थर्ड एरिया। ਤੁਹਾਨੂੰ पता है इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है इधर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऊपर, तो इधर एंगल कितना बनूंगा 90 डिग्री। ठीक है, एंगल एंड ईडी सारा कुछ आप बना लिया। हुण आपां की करते हैं, आप इधर प्रॉपर लिख देने हैं, एग्जाम दे विच किवें करना तुसीं कहोगे कट सर्कल of just cross sectional area, cut circle of ds from sheet, ਜਿਹੜੀ sheet ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਚਾਰਜ ਦੀ, circle ds area ਕੱਟ ਕੀਤਾ and pass cylinder through it such that P किथे होना चाहिए, is at cross sectional area of cylinder। देखो सिलेंडर के क्रॉस सैक्शनल एरिया के ऊपर आके हुण आपां नूं देखो, जिवें तुहानूं मैं दस्सिया सी, ज़्यादा चार्ज दिता होवे 5 कूलम 10 कूलम 9 कूलम है ना दिता होवे, बट जिवें आपां पहले केस च कीता सी, अपने कोले लैंथ आपां नूं नहीं पता सी कितनी का, बट आपां नूं इत्थे ओह दिता होया सी कि यूनिट एरिए ते कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होया होया, उत्थे लैंथ सी। हुण इत्थे की है ये शीट, शीट दे विच की हुंदा एरिया। हुण मैं कह देना सिग्मा हैगी उसदी सरफेस चार्ज डेंसिटी, आ ध्यान रखियो सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी का की मतलब हुंदा राजे, सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब हुंदा चार्ज ओवर एरिया। जिवें मान लो मैं तुहानूं कह देना इस शीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी है 5 कूलम पर मीटर स्केयर, मैं तुहानूं कह देना ये एक मीटर स्केयर एरिया हो गया ना, उसके मीटर स्केयर विच कितना चार्ज है 5 कूलम। जे मैं कहता उहदे कोले 3 मीटर स्केयर ले लिया, आपां 3 मीटर स्केयर एरिया ले लिए, यूनिट एरिए दे विच 1 मीटर स्केयर कितना चार्ज होंदा 5, 3 मीटर स्केयर कितना होगा 15 कूलम। वही जिवें आपां लेंथ वाला केस कीता, इत्थे चार्ज एरिए दे लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट होया। नाउ हुण आपां की करदे हां, नाउ अप्लाई केड़ी थ्योरम, गॉसेस थ्योरम। हुण आ देखो तुहानूं पता गॉसेस थ्योरम की कहंदी है, तुहानूं पूरा अच्छी तरह पता चलना शुरू हो जाएगा। E डॉट ds 1/एप्सिलॉन नॉट इनटू जेडी स्ट्रक्चर तुसीं जेडी ज्योमैट्रिकल स्ट्रक्चर तुसीं बनाई है ਉਹਦੇ अंदर कितना चार्ज पे। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ स्ट्रक्चर बना ਲਈ सिलेंडर। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ आर्टिकल ये भी क्लीयर हो जाऊगा, कदों सिलेंडर बनाना कदों स्फीयर बनाना, नैक्सट आर्टिकल पूरा क्लीयर हो जाएगा। ਹੁਣ देखो फिर ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, सिलेंडर ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦੇ ਆ 3, ਜੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਸਫੀਅਰ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ, ਤਾਂ ਸਫੀਅਰ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਏਰੀਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਰਤਾ। E ਡਾਟ ds ਕਿਹੜਾ ਏਰੀਆ, ਪਹਿਲਾ ਏਰੀਆ, E डॉट ds केड़ा एरिया, सेकंड एरिया, E डॉट ds थर्ड एरिया। ठीक है, इत्थों तक आ गया। ते चार्ज किस दे इक्वल होगा, तुहानूं पता चार्ज की होगा सिग्मा इनटू एरिया, सिग्मा लिख दो। एरिया कितना है मैनूं दसो, इस सिलेंडर दे अंदर कितना चार्ज है, जिन्ना इस शीट दे इत्थों चार्ज है। देखो ਆਪਾਂ सिलेंडर के अंदर सिलेंडर जो पास होया, किन्ने सिलेंडर के किन्ने पोर्शन ने शीट चार्ज वाली शीट के पोर्शन कट किया ds। तो यह मतलब आप सिर्फ सिलेंडर के अंदर किहड़ा चार्ज लवांगे, जिहड़ा इन्ने सर्कल के उपर आ रहा, इस सर्कल का एरिया आप कितना कंसीडर किया होया ds, तो टोटल चार्ज आ गया ds। हुण आ देखो इस तो बाद तो बड़ा सिंपल जिहा है, बोलो फर्स्ट कितना एंगल बन रहा है
0 डिग्री। सैकेंड एरिया च भी कितना एंगल बन रहा है 0 डिग्री। थर्ड एरिया के कितना एंगल बन रहा मैनू दसो 90 डिग्री। ठीक है, हम इसको ओपन कर दो, ये हो जाएगा EDS cos 0। सैकेंड एरिया ये भी कितना हो जाएगा EDS cos 0 डिग्री। cos 90 हो गया 0, इधर आ गया, एक इससे इक्वल आ गया सिग्मा इंटू DS बाई एप्सिलॉन नॉट। आ देखो सिग्मा इंटू DS, इतने मैं एप्सिलॉन नॉट लिखना भूल गया जी, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट तो सी चार्ज सिग्मा इंटू DS सी। हुण इधर देखो EDS cos 0 1 ये कितना हो जाएगा 2EDS 1 बाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू DS। EDS सेम है, हुण E बाहर आ जाएगा DS दी इंटीग्रेशन DS की है इत्थे जिहड़ा तुसीं कट कीता DS ते इंटीग्रेशन ऑफ DS का मतलब की है टोटल क्रॉस सैक्शनल एरिया कितना है। ते आपां पहले ही तुहानूं मैनूं दसो आपां ये क्रॉस सैक्शनल एरिया कितना मन्निया होया पहले मैनूं दसो DS। तेरा मतलब DS की इंटीग्रेशन का DS ही रह गई क्योंकि DS का इंटीग्रेशन का मतलब की है टोटल एरिया जिसकी आपां गल करी जांदे हां। टोटल DS कितना है ये तो मन्ने DS है, ये हो गया DS ही रह गया, ये हो गया 1 बाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू DS। आ देखो DS कैंसल, E की वैल्यू आ गई सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक चीज़ का ध्यान रखियो, इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिस पॉइंट पे मैं कंसीडर की सी ये पॉइंट मैं शीट तो कितनी दूर लिया सीगा R, बट उसके विच कोई आ रहा मैनू दसो डिस्टेंस की वैल्यू आ रही है नहीं। ਇਹਦਾ मतलब अगर तुसी किसी भी चार्ज शीट तो उसके परपेंडिकुलर चार्ज शीट दे किसी भी पॉइंट इलैक्ट्रिक फील्ड पता करनी है उसकी वैल्यू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आएगी तो वो वैल्यू जी हैगी वो डिस्टेंस से डिपेंड नहीं करूगी। जिवें एक शीट है मैं इस पॉइंट पर करा इतने इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, जे अगे चल जाता भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इत्थे चल जा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इत्थे चल जा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली इस साइड पे भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, बट सरफेस दे जिहड़े मैं इत्थे लूँगा इधर मैं मान लो ये पॉइंट है शीट है इत्थे फील्ड उहदी नहीं होगी, सिर्फ सरफेस दे परपेंडिकुलर होएगी। ठीक है, एक बार तुसीं इसनूं नोट करो, थोड़े वधिया क्वेश्चन है, एक दो बार तुसीं इहनूं अपने आप करके भी देखो। फर्स्ट टाइम करना थोड़ा जिहा लगता कि पता नहीं की हो रहा, बट नैक्सट दो एप्लीकेशन का उहदे विच होर ज़्यादा क्लीयर हो जाऊगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसनूं नोट करो।